In this video, we are going to talk about post-structuralism, which is also named as deconstruction. And in this lecture, we are going to talk about what is deconstruction, and we will discuss how it criticizes or attack structuralism. So this is the theory that was given by Jacques Derrida, and it basically involves around the idea that closed reading of a text in the order to demonstrate that the texts are irreconcilably has contradictory meaning rather than being unified whole. This is the critique of structuralism. What's deconstruction in simple word? It involves close reading in the order to discover that text has conflicting ideas. So this is deconstruction, means to reject already set notion in the text. Main proponents of this theory are Jacques Derrida, Kristeva, Foucault, and Lacan. And now we are going to discuss how post-structuralism attacks structuralism. First of all, it questions centrality, fixity of center. Means it questions why the system, according to structuralist, the system of the language is considered the center, and the idea of and what structuralists think about it. They believe that the structure is everything, and this is a single truth in the universe. On the other hand, the post-structuralists attack this idea in the way that they question the centrality of such kind of the notion, and they believe that there is no such center in the universe that hold the single truth. Point number second is it questions the finality of the signified, means the thing signified means original object or the concept that comes in our mind. So if we are talking about some bird or some animal, or if we read in the textbook, the image that comes to in our mind is different. If different people are reading that text, the image that the mental picture will be different, if we try to compare with each other. So this is how we can say that this is the point that Derrida advocates it, how we can say that each and every signifier has single signified. There are the words that there are the mental pictures that are different, and they do not lead us to the single signified. Point number 3, there is no binary opposition. Structuralist focuses on the idea that we can understand meaning of the word by contrasting with opposite meaning. मिसाल के तौर पे अगर हम एक लफ्ज़ ब्लैक ले लें तो इसका मतलब है, स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं कि अगर हम इसका ऑपोजिट देखें, मीन्स ब्लैक का मतलब है नॉट वाइट, और इसी तरह अगर हम लाइट की बात करें तो इसका मतलब है नो डार्कनेस, मीन इसको हमने कंपेयर किया है इसके ऑपोजिट के साथ और इसके साथ हमने नॉट का एडिशन किया है. सिमिलरली इसी तरह जो चेयर को भी हम इसी तरह से कहेंगे कि चेयर ऐसी चीज़ है जो कि ना ही टेबल है, ना ही पेन है, और ना ही कोई और चीज़ है जो कि रिलेटेड टू फर्नीचर है. सो अगर ये वो नहीं है तो इसीलिए ये चेयर है. और इसी तरह अगर कोई भी बर्ड या कोई भी एनिमल की एग्जांपल लेते हैं तो वो हम उसको बाकी ग्रुप्स के साथ, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, बाकी चीज़ों के साथ हम कंपेयर करके देखेंगे कि उसमें हमें कोई वो चीज़, अगर वो चीज़ नहीं है तो इट मीन्स कि ये पर्टिकुलर वो डॉग है. सो जिस तरह से, जिस अंदाज में सोशल ये अपना आइडिया एडवोकेट करता है कि हम जस्ट सिंपल इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मीनिंग को ऑपोजिट देखते हुए, फर्डिनेंड डेरिडा कहते हैं कि इट्स नॉट सो सिंपल, इतना भी आसान नहीं है. मतलब हमें एक पूरी एक लिस्ट होती है वर्ड की. अगर हम चेयर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट है कि अगर ये टेबल भी नहीं है, पेन भी नहीं है, तो फिर ये कहीं जाकर चेयर है. तो मीन्स इतना इजी नहीं है सिग्निफाइड तक पहुंचना, और इतना ये इजी भी नहीं है कि जस्ट
ऑपोजिट को देखते हुए इस वर्ड के मीनिंग हमें क्लियर हो जाए. So it's not an easy. That's why they directly reject or attack this notion कि बाइनरी ओपोजिशन को जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता और देर इज़ नो बाइनरी ओपोजिशन. एक्चुअली जो स्लैश का ये जो नोशन होता है वो इसको डिनाई करते हैं कि स्लैश का जो कि मेल और फीमेल या फिर लाइट और डार्कनेस के दरमियान जो होता है वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता. और ये सोशल जो सोशली इसमें एडमिटेड चीज़ है या उसने खुद से एडिशन की है सोसाइटी की तरफ से, ये एक्चुअली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. नेक्स्ट फीचर इज़ दैट स्ट्रक्चरलिज्म फोकस ऑन द आइडिया दैट पॉइंट नंबर 4 इज़ दैट इट डिमोलिशेस द ट्रेडिशन ऑफ लोगोसेंट्रिसिज्म. लोगोसेंट्रिसिज्म क्या है इसको हम मज़ीद देखेंगे, लेकिन लोगोसेंट्रिसिज्म अगर हम इसको सिंपल वर्ड में देखें तो ये है कि लैंग्वेज जो रिटन लैंग्वेज है इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना है. इस लोगोसेंट्रिसिज्म मीन्स ये कंसीडर करना है कि स्पीच जो है वो इन्फीरियर है एज़ कम्पेयर टू रिटन वर्क, जिसको ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इसको डिनाई करते हैं. पॉइंट नंबर 5 इट डिमोलिशेस द डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी वर्क. पहले ये कंसीडर किया जाता था कि लिटरेरी वर्क जो है वो पर्टिकुलर डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन लिटरेरी वर्क, जिस तरह से पहले से चलता आ रहा था रशियन फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म और बाकी थेरीज़ में. जबकि इस मॉडर्न थेरी में इस चीज़ को डिनाई किया गया कि कोई डिफरेंस नहीं होता. जो डिफरेंस भी है वो एक्चुअली कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो है भी वो भी बहुत माइनर है या बहुत इतना कम है कि उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे. सो दे डिमोलिश द डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लोगोसेंट्रिसिज्म, और जिसको हम सेंट्रल लैंग्वेज का प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कि एक व्यू है स्पीच के. स्पीच जो है वो ज़्यादा सेंट्रल टू लैंग्वेज है, नॉट राइटिंग. डेरिडा क्या बिलीव करते हैं, पहले सोशल का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर लेते हैं. सोशल बिलीव दैट कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज एंड राइटिंग आर टू डिस्टिंक्ट सिस्टम ऑफ द साइन. मीन्स सेकंड एग्जिस्ट फॉर द सोल पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट. मीन्स सेकंड जो कि राइटिंग है वो सिर्फ सोल पर इसका जो पर्पस है वो रिप्रेजेंट करती है स्पीच को, मीन्स लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है. मीन्स इसने लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था. और लैंग्वेज जो है अकॉर्डिंग टू सोशल पॉइंट ऑफ व्यू कि इट हैज़ एन ओरल ट्रेडिशनल दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ राइटिंग. इसने स्पीच को एक टोटली राइटिंग से एक आइसोलेटेड फॉर्म दिखाने की भी कोशिश की थी. ऑन द अदर हैंड डेरिडा इस व्यू को रिजेक्ट करते हैं एंड बिलीव दैट कि स्पीच जो है वो एक ओरिजिनल सिग्निफायर है, क्योंकि अगर कोई बेबी जो है वो लर्न करता है, वो लिखना नहीं सीखता, पहले वो बोलना सीखता है मिमिक्री करके, और इसी तरह वो मीनिंग जो है वो मीनिंग तक जाता है और मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है. और एंड द रिटन वर्क इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द स्पोकन वर्ड. जो रिटन वर्ड होते हैं वो भी स्पोकन वर्ड से ड्राइव्ड होते हैं. मीन्स जो रिटन वर्ड एक्चुअली सिंबल्स होते हैं उसको समझने के लिए भी हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन जानने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम स्पीच पर रिक्वायर्ड है. सो बेसिकली क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है कि डेरिडा जो है इस आइडिया के अगेंस्ट है कि एक चीज़ को सेंटर समझ लेना, एक चीज़ को ही सच समझ लेना और उसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान के उसको ब्लाइंडली फॉलो अप करना. ही इज़ अगेंस्ट सच नोशंस एंड ही बिलीव्ड दैट कि इस किस्म के आइडिया जो हैं वो बहुत इलॉजिकल हैं, ये लोगों को खुद से घड़े हुए हैं, मन घटत हैं, और इसीलिए इनको बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए. और वो इसी पॉइंट पर इस सारे जो सोशल का जो फोकस है, उसके प्रेफरेंस है लैंग पर, उसको वो डिनाई करते हैं, बाइनरी ओपोजिशन को डिनाई करते हैं, और जो सेंटर का कंसेप्ट है कि सेंटर पर लैंग्वेज है, सिस्टम है, उसको भी डिनाई करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस के स्ट्रक्चर लिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि ओपन एंडेड नेचर ऑफ द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट जो है वो एक ओपन एंडेड होता है, उसमें सब्जेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा एलिमेंट कंसीडर किया जाता है. दिस इज़ द नोशन जो कि बाकी सब थेरी से बहुत डिफरेंट है. ना ये फॉर्मलिज्म में इंक्लूड किया गया था, न्यू क्रिटिसिज्म में और स्ट्रक्चरलिज्म में कोई भी ऐसी थेरी नहीं थी, जो कि अभी तक हमने सारी क्लोज एंडेड थेरी ही डिस्कस की हैं. और दिस इज़ द फर्स्ट थेरी जो कि एक ओपन एंडेड थेरी है, जिसमें सब्जेक्टिविटी को, पर्सनल ओपिनियन को, या जो रीडर की परसेप्शन है रिगार्डिंग द वर्क, उसको हाईलाइट किया गया है.
इसको क्यों हाईलाइट किया गया है? क्योंकि डीकंस्ट्रक्शनिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट बिलीव दैट कि अगर हम एक नॉवल को अगर 20 साल बाद या 15 साल बाद पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो एज का और जो मेच्योरिटी का एक लेवल होगा वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इससे ऑब्वियसली जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक डिफरेंट वे में हमें समझ आएगी। सो पुरानी चीज़ें डिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगी और नई चीज़ें हैं जो वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। सो दिस इज़ वाई ही बिलीव्ड कि ओपन एंडेड टेक्स्ट की ओपन एंडेड नेचर होती है। मीन्स हर बंदा जो है वो अपनी कोई भी इंटरप्रिटेशन जो है वो दे सकता है। सो दे ऑल्सो बिलीव्ड इन अपोरिया। अपोरिया क्या है? स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन दैट रीडर्स फेस बिकॉज ऑफ द डेडलॉक ऑफ द मीनिंग और द लैक ऑफ कंक्लूजन इन द टेक्स्ट। क्योंकि ये एक ओपन एंडेड थीरी नेचर पर बिलीव करते हैं टेक्स्ट, क्योंकि ये समझते हैं कि एक टेक्स्ट के बहुत ज़्यादा मीनिंग है। अगर रीडर को ये कहा जाए कि एक टेक्स्ट के बहुत ज़्यादा मीनिंग है और हर मीनिंग जो है वो अपनी जगह ठीक है, तो इट मे बी पॉसिबल दैट अ रीडर फील हिमसेल्फ इन द स्टेट ऑफ द कन्फ्यूजन, जो कि डिकंस्ट्रक्शनिस्ट इसको एक्सेप्ट करते हैं स्टेट को। मीन्स दे बिलीव कि दिस इज़ राइट कि ये स्टेट होती है और इट्स समथिंग जो कि अगर हम इस टेक्स्ट को हम ओपन एंडेड कंसिडर करेंगे तो ऑटोमेटिकली रीडर को ये चीज़ें फेस करना ही होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। मेटाफिजिक्स ऑफ द प्रेजेंस सिंपली कहने का मतलब है कि रीडर की डिज़ायर कि वो जल्दी से इमीडिएट उसको मीनिंग मिल जाए इस टेक्स्ट में, जो कि उसमें उस टेक्स्ट में अपेरेंटली कहीं भी नहीं मिल रहे। सो डीकंस्ट्रक्शनिस्ट या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, इस डिज़ायर को रीडर में, कि जो एक अल्टीमेट डिज़ायर है कि जल्दी से उसके मीनिंग मिल जाए। दिस इज़ समथिंग विच डीकंस्ट्रक्शनिस्ट बिलीव कि इट्स रॉन्ग। अगर हम जल्दी से मीनिंग देखने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो सकता है कि वो इनकरेक्ट हो। तो इसीलिए एक्चुअल मीनिंग जो है वो हम बहुत तेज़ी से नहीं इसको, जो एक्चुअल मीनिंग है वो किसी को भी नहीं पता और इसको हम एक्सेस भी नहीं कर सकते। सो बेसिकली द मीन्स टू से कि जितने भी वर्ड है वो ब्लैक नहीं है। मीन्स इट्स नॉट, द वर्ड इज़ नॉट ब्लैक। वर्ड जो है वो वाइट और ब्लैक नहीं है, बल्कि इट्स ग्रे एरिया। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया, जिस तरह इंसानों के बारे में कहा जाता है। सिमिलरली द केस इज़ विद द वर्ड। इसी तरह या लिटरेचर के बारे में भी सेम चीज़ कहा जा सकती है। सो द टेक्स्ट आर इल्यूसिव, डायनामिक एंड ट्रांजिटरी। मीन्स उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी होती रहती है। जिस तरह से अभी हमने नॉवल की डिस्कशन की कि अगर हम उसको 50 साल या 10 साल का भी फ़र्क दे लें या 2-3 महीनों का भी फ़र्क दे के दोबारा से रीड आउट करें तो ऑटोमेटिकली उनकी रीडिंग का ऑब्वियसली एज का भी और मेच्योरिटी का भी उसको फ़र्क पड़ेगा, एक्सपीरियंस का फ़र्क पड़ता रहेगा। सो ऑल इंटरप्रिटेशन, सो कौन सी इंटरप्रिटेशन ठीक है? डिकंस्ट्रक्शन बिलीव कि सारी इंटरप्रिटेशन जो है वो ठीक है और वो हो सकती हैं और लेजिटिमेट है। मीन्स उनका राइट है कि उनको ठीक कंसीडर किया जाए। मीन्स टू से वही वाला पॉइंट कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया। चीज़ों को अगर ब्लैक और वाइट में समझने की कोशिश की जाए, जिस तरह बाकी जो थेरिस्ट करते थे पहले वाले, उस तरह से अगर कंसीडर किया जाए तो ये बहुत रॉन्ग वे है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया जिसको भी कंसीडर करना चाहिए, जो कि ना ही स्ट्रक्चरलिस्ट कंसीडर करते थे और ना ही उससे पहले वाले लोग करते थे। सो दिस इज़ हाउ डिकंस्ट्रक्शन criticize or attack structuralism. And next point is it refuses an essence. Deconstruction refuses an essence. It denies कि कोई essence नाम की कोई चीज़ होती है. Derrida writes what he thinks about essence. There is nothing that could be said to be essential or to the deconstruction. इन डिफरेंशियल रिलेशन विद द वर्ड। कहते हैं अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सेंट्रलिटी के अगेंस्ट है। बेशक वो जो लोअर पार्ट है, मीन्स बेशक वो लाइट है या डार्कनेस है, वो अगर सेंटर में आ जाए, बेशक लाइट सेंटर में आ जाए या डार्कनेस सेंटर में आ जाए, वो सेंटर के अगेंस्ट होंगे। दे कंसीडर कि सेंटर को जो है वो ओवरऑल किसी भी चीज़ को सेंटर को नहीं कंसीडर करना चाहिए, ना ही उसको सच मानना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ कि वो खुद से भी, डेरिडा खुद से भी इस थ्योरी को डिफाइन नहीं करता अपने वर्ड। इस थ्योरी को हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म और डिकंस्ट्रक्शन के
को हम इस तरह से भी रेफ़र कर सकते हैं कि अगर कुछ ऑरेंजेस पड़े हैं और एक शख्स कह रहा है कि दीज आर मैंगोज, जो कि एक फैक्ट है, जो कि ऑलरेडी पड़े हुए हैं और उसको रेफ़र कर रहा है, दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो कि फैक्चुअल है। ऑन द अदर हैंड अगर एक शख्स कहे कि आई लाइक मैंगोज, आई लाइक ऑरेंजेस, जो कि एक ओपिनियन है, जो कि एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी में, कि अपनी ओपिनियन को, अपनी आइडियाज़ को बयान करना, दिस इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज सब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिव चीज़ों को मीन जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड चीज़ें हैं, जो ऑलरेडी नोशंस या ऑलरेडी रूल्स जो हैं वो जिनको प्रेफर किया जा रहा है उसको देखना या फैक्चुअल चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, दिस इज़ समथिंग जो कि ऑब्जेक्टिव है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट how deconstructionist attacks स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह वो लैंग कंसेप्ट और वो टेक्स्ट व्हाट दे थिंक अबाउट द फाइनलिटी ऑफ द सिग्निफाइड, और दे कंसीडर्ड कि सेंटर की जो इम्पोर्टेंस है उसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि सेंटर इज़ समथिंग जो कि कोई भी अहमियत नहीं रखता और ये इंसानों ने खुद से डिसाइड किया हुआ है, विच इज़ रॉन्ग वे। That's all for today's lecture. Thank you.